پرویز الہی پر درج مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی کی درخواست۔ عدالت نے پولیس اور اینٹی کرپشن کو پرویز الہی کو خفیہ مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے پرویز الہی کو زیر التواء انکوائری میں بھی گرفتار کرنے سے روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ اہم خبر ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عدالت نے پولیس اور اینٹی کرپشن کو پرویز الہی کو خفیہ مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو کسی بھی خفیہ مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اینٹی کرپشن میں جاری 2 انکوائری کیس میں بھی پرویز الہی کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پرویز الہی کے جو غالب مارکیٹ تھانے میں ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہے، اس مقدمے میں پرویز الہی کی حفاظتی ضمانت بھی منظور کر لی ہے، اور یہ احکامات جاری کیے ہیں اینٹی کرپشن پولیس اور نیب کو کہ پرویز الہی کے خلاف اس مقدمے میں بھی پرویز الہی کو گرفتار نہ کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ڈرون کے ذریعے منشیات کی منتقلی کا عمل نہ رک سکا، ایک اور ڈرون منشیات کے پیکٹ لے جاتا فصلوں میں جا گرا۔ ہڈیارہ پولیس اور اینٹی نارکوٹکس نے ڈرون کو قبضے میں لے لیا۔ ایک ہفتہ قبل بھی منشیات سے بھرا ڈرون کاہنہ کے علاقے میں گرا تھا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، منشیات فروشوں نے منشیات کی منتقلی کا جو ہے وہ ایک نیا طریقہ نکال دیا ہے، اور ایک اور ڈرون جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ منشیات کے پیکٹ لے جاتا ہوا فصلوں میں جو ہے وہ ڈرون جا گرا ہے۔ ہڈیارہ کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہڈیارہ پولیس اور اینٹی نارکوٹکس نے ڈرون کو جو ہے وہ قبضے میں لے لیا۔ گرنے والے ڈرون سے 5 پیکٹ ڈرگ پاؤڈر کے جو ہے وہ برآمد ہو گئے ہیں۔ منشیات کی سپلائی دینے والے ڈرون کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا، کون ملزم اس کو چلا رہا تھا اور کہاں پر بیٹھ کر چلا رہا تھا۔ تاحال پولیس اور نارکوٹکس جو ہے وہ تاحال ملزمان تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکی، نہ ہی اس کا جو ہے وہ سراغ لگا سکی ہے۔ پولیس نے اور اینٹی نارکوٹکس فورس نے جو ہے وہ جو ڈرون کا 5 پیکٹ جو برآمد ہوئے ہیں وہ اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ فرانسک ٹیموں کو بھی جو ہے وہ موقع پہ بلا لیا ہے۔ وہاں پر جو فنگر پرنٹ لینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کہیں سے فنگر پرنٹ مل جائیں تو اس کے ذریعے ہے ملزمان تک جو ہے وہ پہنچا جا سکے۔ اس ہفتے قبل کی منشیات سے بھرا ڈرون کانا کے علاقے سے جو ہے وہ گرا تھا، وہاں سے جو ہے وہ برآمد ہوا تھا۔ پولیس اور اینٹی نارکوٹکس نے کانا سے ملنے والے کروڑوں روپے مالیت کی ہیروئن کو تو قبضے میں لے لیا تھا، لیکن وہ تاحال ابھی تک وہ کانا کے جو ملزمان ہیں ان کو بھی گرفتار نہیں کر سکی ہے، اور وہ کروڑوں روپے مالیت کی جو ہے وہ ہیروئن کی جو کہ سپلائی کی جا رہی تھی، 6 جو ہے وہ کلو ہیروئن جو تھا وہ برآمد ہوئی تھی۔ اور کانا کے علاقے میں بھی یہ ڈرون کا جو ہے وہ کہاں سے آیا، کس علاقے سے اڑایا گیا اور کون ملزمان اس کو اڑا رہے تھے، اس جو کانا والے ملزمان ہیں وہاں بھی جو ہے وہ تاحال پولیس ان ملزمان تک بھی نہیں پہنچ سکی ہے۔ ابھی یہ پہلا کانا کے علاقے میں واقعہ، دوسرا چند روز کے بعد جو ہے وہ دوسرے ہفتے میں یہ ہڈیارہ کے علاقے میں واقعہ پیش آیا ہے کہ جو 5 پیکٹ جو ہیں وہ ڈرگ پاؤڈر کے جو ہے وہ ڈرون سے جو ہے وہ ملے ہیں، اور ڈرون جو ہے وہ فصلوں میں گرا۔ مقامی لوگوں نے جو ہے وہ پولیس کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دی، اور مقامی جو ہے پولیس، اس کے بعد جو نارکوٹکس ہیں اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ موقع پر پہنچے اور انہوں نے ڈرون کو جو ہے وہ قبضے میں لے لیا۔ اس حوالے سے پولیس سے کہنا ہے کہ تمام جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کی جا رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے، مقامی لوگوں سے بھی جو ہے اس حوالے سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ تاہم پولیس سے کہنا ہے کہ یہاں پر کوئی کیمرے نہیں لگے ہوئے جس کے ذریعے جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ ڈرون کہاں سے لگا ہوا۔ ہم روایتی طریقے سے جو ہے وہ پولیس جو پرانے طریقے ہیں اس کے ذریعے جو ہے پولیس نے جو تفتیش کا سلسلہ شروع کر دیا، اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی روایتی طریقے سے جو ہے وہ تفتیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ ملزمان تک پہنچ سکے، کیونکہ یہ ایک نیا طریقہ ہے اور جدید طریقہ ہے، اور ڈرون کو جو ہے وہ ڈرون کے ذریعے منشیات جو ہے وہ فروشی کرنے کا، ایک دوسرے کی جگہ سے دوسری جگہ جانے کا، کیونکہ جیسے انسانوں کے ذریعے جیسے منشیات جاتی تھی، گاڑی پہ جاتی تھی، موٹر سائیکل پہ جاتی تھی۔ ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ۔ حفاظتی ٹیکہ جات کی ماہانہ اور ہفتہ وار کوریج میں لاہور بری طرح ناکام۔ 1 ماہ کے دوران صرف 6% بچوں کو ہی حفاظتی ٹیکے لگائے گئے۔ 1 جون سے 8 جولائی کی ماہانہ کوریج کے دوران ناقص کارکردگی رہی۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات سامنے۔ تفصیلات جانتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد۔ بالکل جی، حفاظتی ٹیکہ جات برائے توسیع پروگرام لاہور کی ناقص کارکردگی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور حفاظتی ٹیکہ جات کی ماہانہ اور ہفتہ وار کوریج میں لاہور بری طرح ناکام نظر آ رہا ہے۔
लाहौर में एक माह के दौरान सिर्फ 6% बच्चे ही हिफाजती टीका जात लगवा सके हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात हुए हैं और देखा जाए तो माहाना कवरेज 1 जून से 8 जुलाई तक की रिपोर्ट 2023 के दौरान जो है वो नाकस कारकर्दगी दिखाई दे रही है। सबसे कम रावी टाउन में सिर्फ 1% कवरेज दी गई। रावी टाउन 27,205 में से 336 बच्चे हैं जो वो कवरेज दे सके हैं। इलामा इकबाल टाउन की बात की जाए तो वहाँ पे 18% कवरेज मिल सकी है और दाता गंज बख्श टाउन में हिफाजती टीका जात की 19% कवरेज हो सकी। इसी तरह अजीज भट्टी टाउन 23% कवरेज, वाका टाउन 26% और शालामार 23 और निश्तर 32% कवरेज कर सका है। लाहौर कैंट 40, अमनाबाद 37, गुलबर्ग 33% कवरेज कर सका है। अगर मंथली बात की जाए तो ये तो जो रिपोर्ट बताई जा रही थी ये जो है वो वीकली रिपोर्ट बताई जा रही थी, जबकि इसी रिपोर्ट के अंदर जो है वो माहाना कारकर्दगी भी बताई गई और माहाना कारकर्दगी के लिहाज से इलामा इकबाल टाउन में 60,613 में से सिर्फ 2,685 बच्चे जो वो कवर हो चुके हैं और दाता गंज बख्श टाउन की बात की जाए तो उसमें 5% कवरेज हुई है और 20,530 में से सिर्फ 950 बच्चों को कवरेज मिल सकी है। अजीज भट्टी और वाघा टाउन 6% बच्चों को कवरेज मिल सकी है। अजीज भट्टी टाउन में 28,998 बच्चे जो है वो कवर हो चुके हैं और इसी तरह जो है दीगर टाउन की बात की जाए तो शालीमार टाउन के अंदर 36,900। आपका बहुत शुक्रिया सजाद। आईजी पंजाब ने 2 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए हैं। अहमद मोहिउद्दीन को एआईजी शिकायत सेल सीपीओ तैनात कर दिया गया है। एआईजी शिकायत सेल शाहिद अहमद शाकिर को आईजी ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के तबादलों का सिलसिला जारी है। आईजी पंजाब ने 2 पुलिस अफसरान के तबादले किए। तहरीक मुंसर अहमद महिउद्दीन को नई पोस्टिंग दी गई है। अहमद महिउद्दीन को एआईजी कंप्लेंट सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात कर दिया गया है, जबकि एआईजी कंप्लेंट शाहिद अहमद शाकिर को आईजी ऑफिस में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर इस्मान अनवर ने दोनों अफसरान के जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोनों अफसरान को अपनी नई तैनाती पर फौरी जो है वो रिपोर्ट करने का जो है हुक्म जारी किया है। के मुताबिक एनएस मजीद अफसरान के भी तबादले मतवक्के हैं, खासतौर पर डीएसपी और एसपी और डीपी के तबादले भी मतवक्के हैं। लाहौर में भी जो है वो अफसरान के तबादले मतवक्के हैं और चंद रोज तक आइंदा हफ्ते जो है मजीद जो है वो नोटिफिकेशन आईजी पंजाब की तरफ से किए जाएंगे। इस हवाले से डीएजी हेडक्वार्टर जो है फरिश्तों पर काम कर रहे हैं, जो है नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी किए जाएंगे। चंद रोज पहले जो है बड़े पैमाने पर तबादले किए गए थे। लाहौर में 10 एसपी के तबादले किए गए थे और डीएसपी के भी। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। पंजाब भर में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 7 अमवात हुई। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1211 हादसात पर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। 658 शदीद ज़ख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सबसे ज़्यादा लाहौर में 253 हादसात रूनुमा हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब भर में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 7 अमवात हुई हैं। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1211 हादसात पर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई है। 658 शदीद ज़ख्मियों को फौरी हस्पताल भी मुंतकिल किया गया है, जबकि सबसे ज़्यादा लाहौर में 253 हादसात रूनुमा हुए हैं। पीएचए का पार्कों में पार्किंग फीस नाफिज करने का फैसला है। जिलानी पार्क, बागे जना, ग्रेटर इकबाल पार्क और गुलशन इकबाल पार्क में पार्किंग फीस ली जाएगी। साइकिल 10, मोटरसाइकिल 20, गाड़ी की पार्किंग फीस 30 रुपये होगी। पार्किंग फीस की मद में सालाना 3 करोड़ 10 लाख रुपए आमदन का तखमीना लगाया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं जैनुल आबदीन से। जी जैन, अपडेट कीजिए। ये पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है कि शहर लाहौर के 4 बड़े पार्क्स में पार्किंग फीस को नाफिज करने का फैसला किया गया है, जबकि पार्क्स में पार्किंग फीस के नफाज के हवाले से जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं उन तमाम को मंसूख कर दिया गया है और 4 बड़े पार्क्स में पार्किंग फीस नाफिज करने के लिए टेंडर भी तलब कर लिए गए हैं। जो टेंडर के एसओपीज वज़ा किए गए हैं उसके मुताबिक इन 4 बड़े पार्क्स में पार्किंग के ठेके 1 साल के अरसे के लिए लीज पर दिए जाएंगे, जबकि पार्किंग फीस की मद में 1 साल के दौरान 3 करोड़ 10 लाख रुपए आमदन का तखमीना लगाया गया है। प्लान के तहत जिलानी पार्क रेस कोर्स, बागे जिना, ग्रेटर इकबाल पार्क और गुलशन इकबाल पार्क में ये पार्किंग फीस नाफिज की जाएगी। पीएचए ने पार्कों में पार्किंग फीस का तयन भी कर लिया है, जिसमें साइकिल की पार्किंग फीस 10 रुपये होगी। इसी तरह मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 20 रुपये, गाड़ी की पार्किंग फीस
30 रुपए, पिकअप 50 रुपए, जबकि कोस्टर और बसों के पार्किंग की फीस 100 रुपए नाफिजुल अमल की जाएगी। माजी में देखा जाए तो साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के हुक्म पर पार्किंगों में पार्किंग फीस खत्म कर दी गई थी, ताहम गुज़िश्ता 5 साल के दौरान जो हुकूमत है उनको बारहा इस्तदा की गई कि पार्कों में पार्किंग फीस नाफिज की जाए, मगर हर दफ़ा इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। अब निगरान हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मॉलटाउन सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून पंजाब का तंजीमी इजलास नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल देने का फैसला। इंतखाबी मुहिम के लिए जलसों के इनेकाद के लिए तैयारियों की बेहदायत। पार्टी तंजीमों से तमाम हलकों से उम्मीदवारों की फहरिस्तें तलब कर ली गई हैं। इजलास का अहवाल आपको बता रहे हैं, अहम खबर है और ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है नून लीग की जानिब से और तंजीमी इजलास है ये। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल देने का भी फैसला किया गया है। आपको बताएं कि इंतखाबी मुहिम के लिए जलसों के इनेकाद के लिए तैयारियों की हिदायत भी जारी कर दी गई है। महंगाई में इजाफा न रुक सका, सरकारी अदाद-ओ-शुमार में भी महंगाई की शरह बढ़ने को तस्लीम कर लिया गया। आटा, चीनी, दाल, अंडे, चावल सब महंगे हो गए हैं। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.33% इजाफा हुआ, जिससे हफ्तावार महंगाई की शरह 28.96% रही। हालिया हफ्ते के दौरान 21 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। चीनी, आटे का थैला, अंडे, दाल, चावल, खुश्क दूध और लहसुन की कीमतें बढ़ गईं। एक हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 6 रुपए 89 पैसे का इजाफा हुआ। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 116 रुपए 28 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फी दर्जन अंडों की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक दालमाश की कीमत में तकरीबन 1 रुपया इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते 11 अशिया की कीमतों में कमी और 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। 2 हफ्ते में आटे के थैला 400 रुपये तक महंगा हो चुका। आटे के निर्खों में मजीद तेजी का खदशा मौजूद है। आटा भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगा। 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए तक पहुंच गया। 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 15 किलो आटे का थैला 2400 रुपए में मिल रहा है। खुले आटे के निर्ख में भी इजाफा। खुला सुर्ख आटा 140 रुपए फी किलो है। खुला सफेद फाइन आटा 150 रुपए फी किलो दस्तयाब। चक्की का आटा 170 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। आवाम कहती है आटे की कीमत को तो कंट्रोल होना चाहिए, लगता है गरीब का किसी को ख्याल नहीं। गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया इस हुकूमत ने। जो हुकूमत आती है महंगाई से महंगाई, हर हुकूमत महंगा करती रहती है। अभी 4 साल पीछे चले 750 रुपये का 20 किलो का आटे का तोड़ा था और 29 हो गया। आमदनी वहीं की वही है, कहाँ से इंसान जिए। जब ये लोग आए थे तो इन्होंने कहा था जी हम सब चीज़ें सब रेट कम करेंगे। अगर आप अकॉर्डिंग टू लास्ट गवर्नमेंट के चेक करें तो उनके रेट कम थे और इनके रेट ज़्यादा होते जा रहे हैं और इन्होंने लोन भी ले लिया। आप पता नहीं आगे ये क्या करेंगे। मार्केट सराय के मुताबिक गंदम की कीमत में तेजी से आटा महंगा हो रहा है। ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 4800 रुपए है। आने वाले दिनों में आटे की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा है। तलब बढ़ने पर डॉलर महंगा हो गया। डॉलर की कदर में 1 रुपया 13 पैसे इजाफा हुआ है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ डॉलर महंगा हो गया है। इंटरबैंक डॉलर रेट 1 रुपया 13 पैसे बढ़ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर कम से कम 283 रुपये तक रहा। इंटरबैंक डॉलर रेट 277 रुपये 59 पैसे पर बंद हुआ। मार्केट ज़राए के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ आमदद कनिंदगान की जानिब से डॉलर ख़रीदारी की गई, जिससे रुपये पर दबाव रहा। इसराइल का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा काबिल कबूल नहीं। इसराइल और भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। हम अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। इस आसमानी किताबों की बेहुरमती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बहुत जल्द पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी शुरू हो जाएगी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको भी सुनवाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा शफ़ाफ़ मुल्क जो है वो इसराइल है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो इसराइल की इस करारदाद या इसराइल के इस बयान के ऊपर इफ एंड बट और अगर मगर तलाश कर रहे हैं, मैं उनसे भी ये बात कहना चाहता हूं कि ये कौम और मुल्क का मसला है, ये वतन का मसला है और ये हमारी कौमी गैरत का मसला है। सियासत
दाखिली उमूर ये हमारे आपस के मसाइल हैं, लेकिन इसराइल हो या हिंदुस्तान हो, किसी को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो हमारे दाखिली उमूर में मुदाखलत करे। नामूस कुरान के हक और स्वीडन के खिलाफ रैली शुमाली लाहौर मक्खनपुरा चार मीरा से लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरा ने स्वीडन के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा किया। राहिल अली की रिपोर्ट। जामे मस्जिद बिलाल मक्खनपुरा चाहमीरा से कारी मोहम्मद आरिफ की क़यादत में हुर्मत कुरान और नामूसे रिसालत रैली निकाली गई। उलमा कराम समेत आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्वीडन मुखालिफ और हुर्मत कुरान के हक में नारे लगाए गए। कारी मोहम्मद आरिफ का इस मौका पर कहना था कि उलमा और आवाम ने अपना हक अदा कर दिया। स्वीडन से सफारती ताल्लुकात खत्म करके अब हुकूमत अपना हक अदा करे। अवाम उन्नास का जितना काम है अवाम उन्नास तो वो कर रहे हैं, वो रैलियाँ भी निकाल रहे हैं और नारे भी लगा रहे हैं और स्वीडन की मसनूआत का बाइकाट भी कर रहे हैं। अब जो बाकी हुकूमत का काम है सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते करना और तिजारती बाइकाट करना, ये हुकूमत का काम है। आवाम के बस में जितना काम है आवाम अपनी ताकत और अपनी वुसअत से बढ़कर ये काम कर रहे हैं। रैली में शरीक उलमा ने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का ऐलान भी किया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। LDA की अदम तवज्जुही के सबब केनाल रोड अंडरपासेस की हालत अबतर हो गई। अंडरपासेस की हद ऊंचाई के लिए लगाए गए बैरियर्स टूट फूट का शिकार। हैवी ट्रैफिक के अंडरपासेस में फंसे के वाक़यात और हादसात रूनुमा होने लगे। अंडरपासेस को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी टीपा को तफवीज़। LDA की अदम तवज्जुही अंडरपासेस की हालत अबतर होने लगी। केनार रोड पर वाक़ अंडरपासेस की हद ऊंचाई के लिए लगाए गए बैरियर्स और बोर्ड टूट फूट का शिकार। हैवी ट्रैफिक अंडरपासेस में फंसने के वाक़यात और हादसात रूनुमा होने लगे। कैंप्स अंडरपास से पहले हद ऊंचाई के लगे आहनी रोड टूट चुके, बोर्ड भी मुरम्मत का मुंतज़िर है। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट में फंड्स मुख्तस होने के बावजूद तज़ीन और रश काम न किया गया। दूसरी जानिब टीपा को फाल बनाने के लिए मनसूबे तफवीज़ करने का फैसला। ठोकर न्याज बेग से जलो मोड़ तक तमाम अंडरपासेस की ताज़ीन और आइश टीपा से करवाई जाएगी। LDA के अंडरपासेस से मुतालिक PTCL से मुआहदे की मियाद खत्म हो गई। टीपा की जानिब से पहले मरहले में अंडरपासेस की मुरम्मत का काम किया जाएगा। कारपोरेट सेक्टर और प्राइवेट फर्म्स की सरमायाकारी से अंडरपासेस को खूबसूरत बनाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA सिटी चनाब रोड की तामीर में अहम डेवलपमेंट। LDA सिटी में चनाब रोड की तामीर में हायल रुकावटें दूर होने लगी हैं, जबकि चनाब रोड की तामीर के लिए एक्वायर शुदा अराजी की कब्जे के हसूल के लिए ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। 200 फीट मेन चनाब रोड की तकमील में हायल फैक्ट्री और दीगर एक्वायर शुदा अराजी का बड़ा हिस्सा क्लियर कर दिया गया है। बकिया एक्वायर शुदा अराजी का कब्जा हासिल करके रोड की तकमील का काम मज़ीद तेज़ कर दिया जाएगा। डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन को एक्वायर शुदा ज़मीन के मालिकान को मुआवजे की अदायगी के अमल को आसान और तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वासा ने 25 ट्यूबवेल्स का मंसूबा मंजूर करवाने के बावजूद नए ट्यूबवेल्स नहीं लगाए। MD वासा ने ट्यूबवेल्स की तनसीब पर फंड्स खर्च न करने का नोटिस ले लिया है। आपको बताएं कि शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर 25 से ज़ायद नए ट्यूबवेल्स लगाने का प्लान प्रोग्राम में शामिल था। वासा ने 25 ट्यूबवेल्स का मंसूबा मंजूर करवा कर नए ट्यूबवेल्स नहीं लगाए। माली साल 2022-23 में ट्यूबवेल्स के लिए मुख्तस 70 करोड़ रुपए दीगर तरक्याती कामों पर खर्च कर दिए गए। आजम गार्डन, मुस्तफ़ा टाउन, आर ब्लॉक, जौहर टाउन, यूनियन कौंसिल 203 में नए ट्यूबवेल्स नहीं लग सके। UC 217 सैदपुर बस्तामी में 3 ट्यूबवेल्स नहीं लग सके। कराची मोहल्ला वार्ड नंबर 1 और गुलिस्तान कॉलोनी इन्फेंट्री रोड मुलहिका इलाकों में 15 ट्यूबवेल्स की तनसीब नहीं हुई। MD वासा की जानिब से डायरेक्टर वेस्ट वाटर और हाइड्रोलॉजी की सरजनिश करते हुए फ़ंड इस्तेमाल न करने पर वजाहत तलब कर ली गई।